Good afternoon, my dear students and teachers. ମୁଁ ସସ୍ମିତା ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ପଟେଲ PMC ଲମ୍ବୋଦର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ କୁଣ୍ଡୁକେଲା। ଆଜିର ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସରେ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରହୁଛୁ ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପାଠଟିଏ ପଢ଼ିବା। ଆମର ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି ତାର ଗଠନ କିପରି ହେଇଛି ଓ କିପରି ଆମେମାନେ ଏକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବସବାସ କରୁଛୁ ଓ କେଉଁ ମାନେ ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୋଉମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆମର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବଜଗତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନେବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଅଟେ। ତ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏବେ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କେତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆନ୍ସର ଦେବ। ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ଦେଖିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ କିଏ, କାହାକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟି ତିଆରି ହେଇଥିବା, କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କିଏ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓର, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ କିଏ ଥିଲା ଆମର ବାଲିସକରା ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲୁ ଆମେ। ଯୋଉଟାରେ କି ବାଘ, ଭାଲୁ, ଆମର ହାତୀ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ସିଂହ ଦେଖିଲେ ନା। ତ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା ମୋଗଲି ସେ କୋଉଠି ମାନେ ବଢିଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ। ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛୋଟ ବେଳେ ହଜି ଯାଇଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ସେ ବଡ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ, ଭେରି ଗୁଡ, ବଢିଆ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆମର ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାଘ, ଭାଲୁ ଏମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଯେମିତି ଘର ରହିଛି ତାଙ୍କର ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ତ ଆମ ଯୋଉ ଜୀବଜଗତରେ ଆମର ଏତେ ଭୂମିକା ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଠିକ ସେପରି ଜଙ୍ଗଲର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରୁଛି। ତ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ତୁମର ଭୂଗୋଳ ବହିର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଜୈବମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା। ଦେଖ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ କଣ, ତାପରେ ଭାରତର ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳ ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ନାହିଁ, କିପରି ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖୁଛୁ, ତାପରେ ଅରଣ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ସେ କୋଉଗୁଡ଼ିକ ଦେଶଜ ବୃକ୍ଷ, କୋଉଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଆମର ଅରଣ୍ୟର ଯୋଉ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ କଣ, ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ କଣ, ଅବଗୀକୃତ ଅରଣ୍ୟ କଣ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଅରଣ୍ୟକୁ ଯୋଉ 9 ପ୍ରକାର ଭାଗରେ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଅରଣ୍ୟର ବ୍ୟବହାର, ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କିପରି ହେଉଛି, ତାର ଉପକାରିତା ଆମେ କି ପାଉଛୁ, ତାପରେ ଆମର ଅରଣ୍ୟର ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କିପରି କରିପାରିବା। ଏଇ ସବୁ ହେଲା ଆମର ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜୈବମଣ୍ଡଳ କଣ। ଆମ ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ମୋଟ 4ଟି ମଣ୍ଡଳକୁ ଆମର ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ 4ଟି ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ ଓ ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଏଇ 4ଟି ମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମ ଭୂପୃଷ୍ଠ ବା ଭୂମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଦେଖ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଓ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଏ 3ଟି ମଣ୍ଡଳର ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଯୋଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ତାହା ହେଲା ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ଯୋଉଠାରେ କି ଆମର କିଏ ରହୁଛି, ଆମର ପ୍ରାଣୀ, ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ, ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡିକ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଏହି ଯୋଉ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ଏହି ଜୈବମଣ୍ଡଳଟି ଆମର ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ 10,000 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 10,000 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଅଛି। ତାପରେ ମହାସାଗରରେ 11,000 ମିଟର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଓ ତାପରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ 250 ମିଟର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିସ୍ତୃତ ଅଟେ। ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ ଟିକେ ନୋଟ କରିନେବା। ଆମର ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଆମ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ, ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ରହୁଛୁ, ଜଙ୍ଗଲର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ନା ଆମର ପାରିସ୍ଥିତିକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ପରିବେଶର ବାତାବରଣକୁ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ଭିଦର ଭୂମିକା ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଦେଲେ ଆମେ କଣ କହୁ, ତାକୁ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଆମର ଏକ ଭୂପୃଷ୍ଠର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ ବୃକ୍ଷ, ବୁଦା ଗଛ, କଣ୍ଟା ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
प्रश्न जदि आसो पिलाने अरण्य क्या कहुए तो से समय आम लिखिपर भूपृष्ठर एक विस्तीर्ण अंचल परिव्याप्त क्षुद्र बृहद वृक्ष बुदा गछ कंटा गछ इत्यादि रही प्राकृतिक उद्भिद को अरण्य कहुए। अच्छा प्राकृतिक उद्भिद क्या कहवा आम ना जो उद्भिद गुड़िक बिना मनुष्य सहायतार आपे आपे जन्मी बड़ होता से अंचल जलवायु पानी पवन वृद्धि पाई प्राकृतिक उद्भिद कही था। यह एक मार्किया प्रश्न नंबर आसी था पे एबे देखिबा भारतर अरण्य देखा जाउथवा उद्भिद जेपरि हमर दुई भाग कराइछि गोटे हला हमर देशज उद्भिद आ गोटे हला हमर विदेशज उद्भिद जहा कि जो उद्भिद गुडी कि हमर अन्य देशरु कालक्रमे पर्यायक्रमे आसी आम देश रे रहिछि ताहाको आमे विदेश उद्भिद कहिथौ। आ देश उद्भिद गुडी हमर जो आमे सब देखुछु जे हमर मौल गछ शाल गछ पियाशाल गछ हमर चंदन गछ सब हमर देशज उद्भिद अटे। आमे पुणी देखा जावा विदेश उद्भिद आमर दुई प्रकार गोटे है बोरियली उद्भिद आ गोटे है उष्णकांतीय उद्भिद। ये जो बोरियली उद्भिद से आमर पाइन जातीय वृक्ष देखा पाँच पाइन जातीय पार्वत्य अंचल बेसी मात्रा देखा जाए तो से गुड़िक वृक्ष से आसी जहाँकि आम कहीपर प्रश्न आसे पे बोरियली उद्भिद क्यों अंचल आम देश को आसी से समय आम लिखा चीन और मध्य एशिया आसी। बोरियली उद्भिद आम देश को चीन और मध्य एशिया आम देश को आसी। ठीक सेपरी उष्णकांतीय उद्भिद कौटू आसी ना आफ्रिका इंडोनेशिया और मालेशिया आसी। उष्णकांतीय उद्भिद कौ अंचल आसी ना आमर आफ्रिका महादेश इंडोनेशिया और मालेशिया आमर उष्णकांतीय उद्भिद आसी। प्राय आम एक मार्किया प्रश्न आसी था क्यों अंचल जहाँ आम देश को आसी। देखा अरण्यर प्रकार भारत विभिन्न मान अरण्यर प्रकार किपर ना जलवायु भूमि रूप तार विभिन्न देश जलवायु अनुसार तार भूमि रूप तार आंचलिक आवश्यकता अनुसार जंगल गढ़ी उठी थाए। भारतर मध्य प्रदेश देख पिला माने अरुणाचल प्रदेश और आमर छत्तीसगढ़ बेसी मात्रा रे अरण्य देखा आम देशर आमर मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ अंचल बेसी मात्रा अरण्य देखा जाउथबा बेले हरियाणा रे सबुथुरु कम अरण्य देखा अरण्य रे आमर सबुथुरु कम अरण्य देखा देते। प्रश्न आसे पिला माने सर्वाधिक अरण्य कोठारे देखा जाए आम समय लिखि परिबा अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ किंबा आमर मध्य प्रदेश रे अधिक अरण्य देखा जाए जोटा ऑप्शन थिबो ए तीनोटी भितर आम सेफ ऑप्शन को चूज कर लिखि परिबा। सेहीपरि ठीक सर्वनिम्न अरण्य कोठी देखा जाए कहले आम हरियाणा को हरियाणा राज्य सर्वनिम्न अरण्य देखा जाए बोली आम करबा। ठीक से आम देखा जो गुल्म अरण्य रही गुल्म गुड़िक जो बेसी वृक्ष गुड़िक बेसी उच्चता विशिष्ट न था बुदालिया था गुल्म अरण्य कहुए ताहा आमर आंध्र प्रदेश रे बेसी मात्रा रे देखा जाए। सर्वाधिक अरण्य गुल्म अरण्य आंध्र प्रदेश रे रही। पंजाब और गोवा रे कम आयतन विशिष्ट वृक्ष देखा जाए आमर माने पंजाब और गोवा रे प्राय माने अरण्य बेसी मात्रा देखा जाए नहीं। इतले भूगोल शिक्षा करबा आमे मैथ को हम आखि सामना रखिले आमे ठीक रूप राज्य गुड़िक नाम आम कही पार आम ध्यान में आसीज। ठीक से आम देखा गले प्रशासनिक दृष्टि आमर भारत में अरण्य को तीन भाग विभक्त कराई गोटे है आम संरक्षित अरण्य गोटे सुरक्षित अरण्य आ गोटे अवर्गीकृत अरण्य। प्राय पार्थक्य दर्श आसते पे पार्थक्य हिसाब से कराई नोट करनब ना आमर संरक्षित अरण्य सरकार प्रत्यक्ष तत्वाधान माने परिचालित होता है। एठारे आमर काठ संग्रह और पशुचारण जनसाधारण को अनुमति मिली न थाए जेहेतु सरकार द्वारा संरक्षित होगी रही से कौन प्रकार काठ संग्रह करा जाए नहीं कि पशुचारण करा जाए नहीं एठारे अनुमति मिले नहीं। यहीपरि आयतन विशिष्ट आमर यही अरण्य अच्छी आमर 53% रही। प्रश्न आसे संरक्षित अरण्यर आयतन केते आम देश में संरक्षित अरण्यर आयतन केते अच्छे ताले हम लिखि परिबा 53% बा 53% जहाँ आम मन रखी लिखि परिबा। ठीक से परी सुरक्षित अरण्य मध्य सरकार तत्वावधान में थाए किंतु एठारे कौन प्रतिबंधक न थाए काठ संग्रह और पशुचारण जनसाधारण को अनुमति
मिली थाए प्राय परीक्षा आसे पिला देखो पार्थक्य दर्श एठारे संरक्षित अरण्य मिली न थाए आउ सुरक्षित अरण्य काठ संग्रह पश्चात अनुमति मिली थाए यार आयतन है 53% होता बेले यार आयतन है 29 बा 29% 29 भाग होई रही थाए पर हम दुईटी पॉइंट लिखले हमर 2 मार्क आराम रे हमको मिली थाए ठीक से परि आसला कोन अवगत अरण्य रे कोनसी प्रकार प्रतिबंधक थाए नाही एठारे काठ संग्रह पश्चारण पाई कोनसी माने मना करा जाय नै कोनसी माने बाधा बाधक नुहे आयतन है यार 18% आम जो आम अंचल प्राय छोट छोट अरण्य देखा जाऊँ ताहला ये प्रकार अरण्य जो आम जाणी काठ आनी था आमर देखिए आम अंचल गोटे छोट छोट किसी अरण्य थाए आम रास्तार गला बेले कि आम देखा पाइबा तो से भाव में आम काठ व्यवहार कर पशुचारण आम सब से अरण्य को व्यवहार कर आंचलिक होता है से गोष्ठी प्रतिबंधक से रहे ना आम देखा पुणी गला प्रशासनिक दृष्टि बर्तमान देखा संविधान अनुसार ना संविधान अनुसार आम अरण्य है 3 प्रकार गोटे है राज्य अरण्य गोटे है गोष्ठी अरण्य आ गोटे है बेसरकारी अरण्य राज्य अरण्य रही यह सरकार नियंत्रण में थाए यार आयतन सर्वाधिक अटे आम यार आयतन है 93.8 को माने नोट करनब आमर 1 मार्किया प्रश्न आसी जाए ना आमर सर्वाधिक संविधान अनुसार क्यों अरण्य आयतन सर्वाधिक अटे तो आम से समय लिखिपर राज्य अरण्य ठीक से गोष्ठी अरण्य या स्थानीय संस्था गंजीपुर नगरपालिका पंचायत मान द्वारा परिचालित हुए यार आयतन है 4.9% 4.9% यार रही बेसरकारी अरण्य या व्यक्ति संपत्ति भाव में व्यवहार कराए जार आयतन है 1.3% पॉइंट बाय लिखिदे आम शीघ्र मन रही परीक्षा बेले अवश्य आमको कन्फ्यूजन हम ना वर्तमान देखा आमर प्रशासनिक गला संविधानिक दृष्टि गला किंतु सबुठ मुख्य रहा जलवायु जलवायु अनुसार आम अरण्यर विभागीकरण कर जलवायु और भूभागर विविधता अनुसार भारत में आम 9 प्रकार अरण्य देखा पाई एगुड़िक आमर क्रांतीय आर्द्र चिरहित अरण्य क्रांतीय आर्द्र अर्ध चिरहित अरण्य क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य जुआरिया अरण्य क्रांतीय कंटावन और गुल्म अरण्य उपक्रांतीय पार्वत्य अरण्य नातिशीतोष्ण पार्वत्य अरण्य और शेष रहा आमर आल्पीय अरण्य यह आमर 9 प्रकार अरण्य भाग करा गोटे गोटे करी समस्त अरण्य विषय आम आलोचना करवा प्रथम आमर क्रांतीय आर्द्र चिरहरित अरण्य यही अरण्य पत्र जड़ा दिए ना और वर्षा सबुज देखा जाए बोली आम चिरहरित अरण्य बोली कही चिरहरित सबुदिन जहाँ सबुज देखा जाए से अरण्य को कौन कहुए आर्द्र चिरहित अरण्य कहुए जहाँकि पत्रझड़ा दिए ना यार सर्वाधिक वृष्टिपात है आमर 250 सेमी रु अधिक हारे वृष्टिपात 250 सेमी रु अधिक होता है से पत्रझड़ा दिए ना या सबुज वर्षार सबुज ही रही है यार तापमात्रा है आमर 40 डिग्री सेल्सियस रु 25 डिग्री सेल्सियस यार आर्द्रता है 77 ठारू 77% रु अधिक होता है यहीपरि अरण्य प्राय आमर घंच अरण्य रही है आमर बड़ बड़ गछ जैसे आमर चंदन वृक्ष श्वेत सेदार रोजुड शिशु बेत गुर्जन बाउंश एपरी गछ गुड़िक देखा यहीपरि अरण्य आम देखा जावा भारतर आसाम मेघालय मणिपुर नागालैंड पश्चिम घाट पर्वतमाला और अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज यही प्रकार अरण्य बेसी मात्रा देखा थाए आम जस्ट मिंती कर सैड यही प्रकार अरण्य बेसी मात्रा आम देखा थाए देखा नेक्स्ट क्रांतीय आर्द्र अर्ध चिरहरित अरण्य यार वृष्टिपात है आम 250 सेमी अधिक यार 200 रु 250 सेमी वृष्टिपात होता है गुड़ाक पॉइंट गुड़ाक आम एमती लिखिले आम लंग क्वेश्चन पढ़ले भी आम भल भाव में दर्शे पार यार आर्द्रता है 75% जदि कि आमर 77%। यार वृक्ष गुड़िकर उच्चता है 24 मीटर रु 36 मीटर पर्यंत यार उच्चता था अरण्य आम वृक्ष देखा जाए मैंने मुख्य वृक्ष कदम रोजवुड काजू कुसुम चेस्टनट चंपा इत्यादि गछ बेसी मात्रा देखा यह चिरहरित अरण्य और पर्णमोची अरण्यर एक मिश्रित अरण्य बोली कहा जाई पारे माने पत्रझड़ दिए आउ सबुज रही तेणु यहाँ मिश्रित अरण्य बोली आम कही था
यह आमर आसाम पूर्व हिमालय और ओडिशा उपकूल में बेसी मात्रा यही अरण्य देखा। प्रश्न आसीपे पे आम ओडिशा उपकूल में क्यों प्रकार अरण्य बेसी मात्रा देखा जाए तुम लिखिपर क्रांतीय आर्द्र अर्धचिरहरित अरण्य। आम देखा क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य यार अन्य नाम पर्णमोची अरण्य जो आम यार अन्य नाम आम रखु मौसुमी अरण्य। यही अरण्यर वृक्ष मान ग्रीष्म ऋतु पूर्व 6 सप्ताह 8 सप्ताह पर्यंत आमर पत्रझड़ा दे था। निर्दिष्ट समय ग्रीष्म ऋतु निर्दिष्ट समय एगुड़िक आमर पत्रझड़ा दे था जो कि आमर देख पत्रझड़ा मान पड़ जामर तो कौन पुणी किसी समय पर पुणी नूतन वृक्ष नूतन पत्र जंगलटी पुणी सबुजमय देखा जाए। यार पृष्ठपात है 100 ରୁ 200 सेमी पृष्ठपात होता है। यह देखा वृक्ष गुड़िकर उच्चता है 25 ରୁ 60 मीटर पर्यंत उच्चता रही है। यही सब अरण्य जो सब अरण्य प्राय देखा पाई से गुड़ी गला शाल पियाशाल शागुआन शिशु चंदन रोजवुड डून खैर कुसुम यहपरी गछ गुड़िक वृक्ष गुड़िक यही क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य देखा दे। यार वर्ष एक निर्दिष्ट समय पत्रझड़ा दौथार यही अरण्य को आम मौसुमी अरण्य व्यतीत पर्णमोची अरण्य कही थाऊ। प्रश्न आसले आम लिखिपर कहीं कारण दर्शा पढ़ी पारे पिला माने आम कहीं क्रांतीय मान आम मौसुमी अरण्य को पर्णमोची अरण्य बोली कही था कारण दर्शा। तो से समय आम लिखिपर जे मौसुमी अरण्यर वृक्ष गुड़िक एक निर्दिष्ट समय ग्रीष्म ऋतु पूर्व 6 सप्ताह ରୁ 8 सप्ताह पर्यंत पत्रझड़ा दे था तेणु यहाँ पर्णमोची अरण्य बोली कहुए। आम देखा क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य। यही अरण्य वृष्टिपात प्राय 70 ରୁ 100 सेंटीमीटर होता है। तापमात्रा 15 डिग्री सेल्सियस ରୁ 22.2 डिग्री सेल्सियस पर्यंत होता है। यार आर्द्रता 63 ରୁ 70% थाए। यही गुड़िक आमर शागवान वृक्ष केन्दु वृक्ष शाल रोजवुड पलाश बेल देखा मिलता है। केन्दु वृक्ष प्राय पाख जंगल में देखुचु शागवान गछ देखुचु तो यही सब वृक्ष यही अरण्य देखा मिलता है। यह प्रकार अरण्य प्राय देखा पाइले उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु अंचल और कर्णाटक यही सब अंचल आम बेसी मात्रा यही अरण्य क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य देखा पाई थाऊ। नेक्स्ट आम देखा जुआरिया अरण्य। जुआरिया अरण्य कौन ना हाराहारी वृष्टिपात जुआरिया अरण्य 120 सेमी होता है। जेतु नामकरण कर जुआरिया अरण्य आम जापर कथा जुआर जो जुआर फटा सृष्टि हुए सेठारे ही यही अरण्य देखा जाए। जेपरिक आमर समुद्र बा नदी कूलियार त्रिकोणभूमि अंचल से अंचल एति मात्रा जुआरिया अरण्य देखा पाइबा। त्रिकोणभूमि और निम्नभूमि गुड़िक देखा जाए यही अरण्य। यही भूमि गुड़िक जुआर बेले समुद्र पानी रे पूर्ण हो जाए एवं फट्टा बेले सुखिला बा कादुआ अवस्था को आसी थाए। पूर्व उपकूल में गंगा त्रिकोणभूमि ठारू आरंभ करी कावेरी नदीर त्रिकोणभूमि पर्यंत अंचल यही अरण्य देखा जाए। यह अरण्य सृष्टि किपरि होची ना जुआर समय जो पानी माड़ी आसुची जो फट्टा समय पानी सुखिला जो कादुआ रही जाउची से कादुआ जो अरण्य सृष्टि होची बा से कादुआ पानी रे सेइथरु जो अरण्य गछ वृक्ष सृष्टि होला ताहाको आमे जुआरिया अरण्य बोली कहि थाउ। जहा कि हमर बेसी मात्रा रे देखिबा को मिले गंगा त्रिकोणभूमि ठारू आरंभ करी कावेरी नदी पर्यंत त्रिकोणभूमि पर्यंत यही अरण्य विस्तृत बा बेसी मात्रा रे देखा जाय थाए। हाथ में यही प्रकार अरण्यर आयतन प्राय हूँ 4650 वर्ग किमी। नोट कर प्रश्न आसे जुआरिया अरण्यर आयतन के से समय लिखिपर ना आम जुआरिया अरण्यर आयतन है 4650 वर्ग किमी। अंचल यही अरण्य विस्तृत होता है जहाँ कि समुदाय भारत में देखा जावा भाग है शतांश 0.14 भाग रही। हाथ में प्राय आम 28 जुआरिया अरण्य देखा पाई था। छोट बड़ मिसिकी प्राय आम 28 जुआरिया अरण्य भारत में देखा दे। गंगा ब्रह्मपुत्र त्रिकोणभूमि जो अरण्य रही बहुत माने बड़ से देखा वृक्ष को आम सुंदरी वृक्ष बोली कही था जहाँकि आम अनेक कम आसी थाए। प्रश्न आसे पिला माने जुआरिया अरण्यर मुख्य वृक्ष कौन ना सुंदरी वृक्ष जहाँ से आम कौन कहुए ना जुआरिया अरण्य को सुंदर वन कहुए। जुआरिया अरण्य गुड़ी को आम सुंदर वन कही। प्रश्न आदि आसो जुआरिया अरण्य को कहीं सुंदर वन कहुए कारण दर्शाओ तो से समय आम लिखिपर ना जुआरिया अरण्य गुड़िक
अत्यधिक मात्रा बेसी मात्रा सुंदरी वृक्ष देखा जाउथारु सेही अरण्य गुड़िक नामकरण सुंदर वन बोली करा जाइछि। उत्तर भारत पश्चिम बंग रे अछि एही सुंदरी वृक्ष गुड़िक एक प्रकार हेंताଳ वृक्ष अटंती जहाँकि आम ओडिशा रे जो सुंदरी वृक्ष अछि ताको आम ओडिशा रे हेंताଳ वृक्ष बोली कहा जाउछि जहाँकि आम ओडिशा महानदी ब्राह्मणी बैतरणी त्रिकोणभूमि रे भितरकनिकार मध्य एपरिक माने विभिन्न स्थान रे हमर देखा जाइछे सुंदरी वृक्ष जहाँको आम हेंताଳ वृक्ष बोली कहिताउ आ सुंदर आ एई जो वृक्ष गुड़ी ज्वारी अरण्य को आम ओडिशा रे हेंताଳ वन बोली कहा जाइछे। पिला मन रखिबो ओडिशा रे ज्वारी अरण्य कोन कहा जाय ना हेंताळ वन कहा जाय हेंताळ वन बोली कहा जाय। या प्रश्न हमर एकमात्र प्रश्न पड़ी पारे ना ओडिशा रे ज्वारी अरण्य को कोन कहा जाय आमे ताको हेंताळ वन बोली कहिथाउ। एही जो हमर रहिला एही वृक्ष गुड़िकर उच्चता प्राय हमर 30 मीटर पर्यंत होइथाय। ई सुंदरी वृक्ष को आउ कोन कहा जाय ना कांडाला बोली मध्य कहा जाय। आमे आउ एक मार्क प्रश्न आसी हमर प्राय आसे हमें मने माने प्राय भूल भी होता है ना हमर कांडाला वृक्ष का कहा जाए ना सुंदरी वृक्ष को कहा जाए। सुंदरी वृक्ष को आउ कि नाम रे कहा जाए ना कांडाला वृक्ष कहा जाए। हेंताଳ कांडाला तांको उभय जो ऑप्शन थिबो हमें लिखि पारिबा। ए जो हमर ज्वारी अरण्य गुड़िक मुख्यतः हमर ज्वार पट्टा समय रे बेसी हमर काम रे आसी थाए ना हमर आश्रय स्थली भाबरे काम करता। देखो एपर वृक्ष जंगल थिबारु पानी आसी माडी आसी पारु नाही तो ए समय रे हमर आश्रय स्थली भाबरे काम अथवा आश्रय बल बोली आमे ताको कहिथाउ। तो हमर रहिला काजुरीना बा झाऊ वृक्षर काठरे डंगा तयारी ए जो ज्वारी अरण्य देखा जाउतबा काजुरीना गछ बा झाऊ गछर काठरे कोन तयारी होय ना हमर डंगा तयारी। प्रश्न आसे पिला माने क्यों वृक्षर काठरे हमर डंगा तयारी हो से समय आमे लिखि परिबा काजुरीना बा झाऊ वृक्षर काठरे आमे डंगा तयारी करी थाउ। ठीक से परि सुंदरी वृक्षर फूल को आमे कोन करू ना लुगारे रंग कसिया पय व्यवहार करि थाउ। विभिन्न जो कलर गुडा का अछि हमर गोलापी कलर लाल कलर ब्लैक कलर सब आमे करतु से सुंदरी वृक्षर फूलर रु आमे संग्रह करी लुगारे रंग कसिया व्यवहार करि थाउ। भारतर पश्चिम उपकूल अवस्थित गभीर और कम ज्वार विशिष्ट होइथिबारु सेठारे ए प्रकार अरण्य देखा जाय नै किंतु हमर गुजरात रो कच्छ उपकूल रे ज्वारी अरण्य रही अछि। गुजरात कच्छ अंचल में बेसी मात्रा रे ज्वारी अरण्य देखिबा को पाई थाउ। तापर हमर क्रांतीय कंटावन बा गुल्म अरण्य एही अरण्य हारारी वृष्टिपात हला 50 सेमी रो 75 सेमी। यार आर्द्रता तापमात्रा हला 25 डिग्री रो 27 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता हमर हला प्राय 47% एही वृक्ष गुड़िक हमर प्राय बेसी माने कम वृष्टिपात रे होउछांती सेति पय 50 सेमी रो कम वृष्टिपात अंचल रे कंटक ओ गुल्म बा काक्टस जातीय बा हमर जो नागफेणी गछ हला कि कैक्टस जातीय वृक्ष देखिबा को पाइथौ। 50 सेमी रो अधिक वृष्टिपात होतो अंचल रे हमें प्राय तृणभूमि जेपरि सबाई घास हला हमर आकाशिया गछ ए सब गछ हमें देखु जो अंचल रे हमर क्रांतीय गुल्म कंटावन जो अंचल रे हम 50 सेमी रो कम वृष्टिपात होउची से अंचल रे हमें प्राय हमर कंटा जातीय उद्भिद जे काक्टस नागफेणी एक देखिबा को पाइथौ। आ जो 50 सेमी रो अधिक वृष्टिपात होउची से अंचल रे हमें प्राय छोट छोट तृणभूमि सबाई घास हला हमर आकाशिया बाबुल गछ ए सब गछ हमें देखिबा को पाइथौ। दक्षिण पश्चिम पंजाब पश्चिम हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश रो केंद्रीय और राजस्थान पूर्व राजस्थान पश्चिम मध्य प्रदेश पश्चिम गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ ए सब अंचल रे हमें जो ब्रिटिश अंचल रे ए सब प्रकार अरण्य देखा देई थाए। तापर हमर उपक्रांतीय पार्वत्य अरण्य ए जो उपक्रांतीय पार्वत्य अरण्य को हमें तीन माने प्राय हमर तीन भाग रे भाग कराइछि। प्रथमटी हला हम उपक्रांतीय आर्द्र पाइन अरण्य ना यार वृष्टिपात ए अरण्य वृष्टिपात हला हमर 100 रु 200 सेमी। तापमात्रा हला 15 डिग्री सेल्सियस रु 22 डिग्री सेल्सियस। यार आर्द्रता हला हमर 63 रु 77%। एही अरण्य रे हमें देखिबा को पाइबा चीर जामु ओक और घंच तृण रोज रोडोट्रेन ए प्रकार गछ हमें देखिबा को पाइ। ठीक से परि के अंचल देखा जाय ना उत्तर पश्चिम हिमालय रे बेसी मात्रा रे एही अरण्य देखा देई थाए। हमरो 1000 मीटर रु 1800 मीटर उच्चता मध्य रे खासी पहाड़ और नागालैंड और मणिपुर रे मध्य एही अरण्य देखा खासी पहाड़ अछि मणिपुर और नागालैंड मध्य एही अरण्य देखा देई थाए। उपक्रांतीय आर्द्र पाइन अरण्य तार द्वितीय रे हमरो उपक्रांतीय शुष्क चिरहरित अरण्य
यार मध्य वृष्टिपात 50 सेमी रु 100 सेमी भितर होता है। यार तापमात्रा 20 डिग्री रु सेल्सियस रु 25 डिग्री सेल्सियस। वर्षा ऋतु 26 रु 38 दिन रहे यही माने अरण्य पत्र माने देउथबो। तापर भूमध्य सागरीय जलवायु विशिष्ट उद्भिद क्षुद्रपत्र विशिष्ट कंटावन और आकाशिया और ऑलिव एपरि गछ एठारे हम देखिबा को पाइता। वर्षा ऋतु प्राय तृण बुदा गछ मध्य देखा देइथांती। हिमालय पर्वतर पाददेश अवस्थित 450 मीटर रु 1500 मीटर उच्चता मध्य पंजाब हरियाणा और काश्मीर अंचल यही अरण्य देखा देइथाय। हिमालय पर्वतर आमर 450 रु 1500 मीटर उच्चता पर्यंत यही अरण्य आम देखा पाई। उपक्रांतीय शुष्क चिरहरित अरण्य। 3 नंबर है उपक्रांतीय आर्द्र पार्वत्य अरण्य। यार वृष्टिपात प्राय 150 सेमी रु अधिक होता है। यार तापमात्रा 18 डिग्री सेल्सियस रु 24 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता है 51% रु 81%। वर्षा दिन 78 रु 146 दिन पर्यंत रही है। यार आम वृक्ष मुख्य है जामु वृक्ष सेलिटिस वृक्ष ये सब वृक्ष देखा पाई जार उच्चता 15 मीटर रु 30 मीटर पर्यंत होता है। ओक और चेस्टनट देखा जाता है। यह दक्षिण भारतर नीलगिरी अंचल बेसी मात्रा यही अरण्य देखा आमर हिमालय पालनी पर्वतर 900 मीटर रु 1600 मीटर पर्यंत अरण्य देखा पाइबा। पूर्व हिमालय निम्न ढालू 90 रु 180 मीटर पर्यंत आम अरण्य देखा पाई। आसाम यहपरि अरण्य देखा पाई उपक्रांतीय आर्द्र पार्वत्य अंचल अरण्य। तापर आमर नेक्स्ट नातिशीतोष्ण पार्वत्य अरण्य। यार 3 भाग कराई। सोलास प्रथमटी आमर सोलास। सोलास 15 सेमी रु अधिक वृष्टिपात होता है। 18 डिग्री सेल्सियस रु शीत ऋतु तापमात्रा निम्न थाए। यही सब अरण्य आमर लरेल रोडेट्रेंड यूकालिप्टास एपरि गछ देखा मिलता है जहाँकि आम विदेश उद्भिद अटे। दक्षिण भारत यह देखा मिले। नीलगिरी पर्वत अंचल यह बेसी मात्रा आमको यही अरण्य देखा देता है। सोलास अरण्य कोट देखा जाए नीलगिरी अंचल बेसी मात्रा देखा तार द्वितीय आर्द्र नातिशीतोष्ण अरण्य। यही अरण्य प्राय आमर वृष्टिपात 100 रु 200 सेमी वृष्टिपात होता है। 12 डिग्री सेल्सियस रु 13 डिग्री सेल्सियस तार तापमात्रा 56% रु 65% है यार आर्द्रता। ये जो वृक्ष गुड़िक प्रशस्त पत्री चिरहरित होता और सरल वर्गीय वृक्ष मिश्रित भाव में रही है। वृक्षर उच्चता प्राय 30 मीटर रु 45 मीटर होता है। एम ओक फिर देवदारू चेस्टनट सोदार आदि गछ देखा मिलता है। हिमालय पर्वतर काश्मीर ठारू सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर्यंत यही अरण्य 1500 मीटर रु 3300 मीटर पर्यंत परिव्याप्त व विस्तृत अटे। तार शुष्क नातिशीतोष्ण अरण्य। यही अरण्य आमर देवदारू जूनिपर और चिलगोजा आदि गछ देखा जाए। यहाँ प्राय आम लद्दाख अंचल बेसी मात्रा आम देखा पाई। आमर हिमालय 1500 मीटर उच्चता पर्यंत ऊर्धर यही वृक्ष यही अरण्य देखा देता है। सबुठ ऊर्धर यही अरण्य आमर देखा देता है। तापर आमर लास्ट शेष अरण्य है आल्पीय अरण्य। यही अरण्य हिमालय पर्वतर 27 मीटर रु 4000 मीटर उच्चता मध्य सरवर्गीय वृक्ष जेपरिक पाइन और पनमची वृक्षर मिश्रित अरण्य देखा देता है। भारतर हिमालय पर्वत उत्तर पश्चिम सीमार उत्तर पूर्व सीमा पर्यंत यही अरण्य विस्तृत। यह प्राय परीक्षा आसी आल्पीय अरण्य क्यों अंचल क्यों अंचल पर्यंत विस्तृत आम लिखिपर। हिमालय पर्वतर उत्तर पश्चिम सीमार आमर उत्तर पूर्व सीमा पर्यंत यह परिव्याप्त। एठारे आमर 2850 मीटर रु 3600 मीटर उच्चता मध्य सिल्भर फिर जूनिपर पाइन गछ देखा देता है। हिमालय पर्वतर दक्षिण ढालू अंचल 60 रु 90 मीटर उच्चता विशिष्ट आल्पाइन उद्भिद देखा जाता है। यार उत्तर ढालू अंचल हिमरेखार निम्न शुष्क कंटा जातीय गुल्म उद्भिद मध्य देखा देता है। एठारे आमर जो गुज्जर माने ऋतुकालीन स्थानांतरण कार्य माध्यम पशुचारण करथांती। पश्चिम हिमालय देखा ब्रह्मकमल आम जान समस्त ब्रह्मकमल विषय जाचु। ब्रह्मकमल आम देखा जाए कौटी ब्रह्मकमल और कुंथ नामक उद्भिदर
सुगंध पुष्परु अतर प्रस्तुत करा जाए विदेश को रप्तानी करा जाए प्राय प्रश्न आसे एक मार्किया प्रश्न आमर कि आम कौ वृक्षर मैं कौ उद्भिद आमर अतर प्रस्तुत हुए और कौ विदेश को रप्तानी करा जाए ना आमर ब्रह्मकमल कुंठ नामक दुईटी उद्भिद अच्छी जार सुगंध पुष्परु अतर प्रस्तुत करी आम विदेश को रप्तानी करिथाउ। ठीक से पर हिमालय पर्वतमालार हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश यू नामक औषधीय उद्भिद वर्तमान विपदग्रस्त अच्छी किंतु वर्तमान माने विपदग्रस्त एबे देखा जाउ नै किंतु प्रश्न आसे हमर यू वृक्ष केउ वृक्ष औषधीय गुण रे भरपूर ना हमर यू वृक्ष हैला जा हिमालय पर्वतमाला देखा जाए ताहा एबे विपदग्रस्त किंतु एहा से बहुत गुडी औषधीय गुण रहिछि। ठीक से परी यार छाल बकल सूची सदृश पत्र चेर डाल इत्यादि माने हे यू गछर समस्त तार डाल पत्र तार छाल छाली तार फूल सबुत किसी ना कि औषधीय गुण रही आर कौन बना जाए आमर टैक्सकोन नामक रासायनिक जैविक पदार्थ औषध प्रस्तुत करा जाए जहाँकि आमर कर्कट बा कैंसर रोगों अभ्यर्थ औषध अटे। अरण्यर व्यवहार उपकारिता आम अरण्यर उपकारिता व्यवहार उपकारिता बहुत भल भाव जानी ना जलवायु को नियंत्रण करता है भूपृष्ठ जल वृष्टि जलर प्रभाव और पवनर वेग को नियंत्रण करे भूगर्भस्थ जल संचय मूर्तिका अवक्षय रोके और विभिन्न प्रकार आमर कार्य आसी आमर जो मौलिक आवश्यकता रही तार 95 प्राय अधिकांश आम अरण्य ही पूरण कर अरण्यर वृक्ष प्राणी समस्त आमर परिवेश संतुलन रक्षा करने सहायक होती। आम देखा अरण्य संबलर संरक्षण देश में मोट क्षेत्रफल एक तृतीयांश भूमि अरण्य रहा आवश्यक किंतु पार्वत्याचल समुदाय भूमि 60 भाग अरण्य और समतल भूमि 20 भाग रहा आवश्यक अटे किंतु धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि जो यार मात्रा आमर कमी कमी जीवारे लगी सरकार विभिन्न पदक्षेप नौकरी जे पुनः वनीकरण करा सामाजिक वनीकरण करा विभिन्न आमर वन महोत्सव दिवस पालन करा आम देखा आमर पुनः वनीकरण जो आम सरकार जो पुनः वनीकरण कार्यक्रम आरंभ होती जो आमर 2017 मसीहा परे अरण्यर आयतन प्राय 3976 वर्ग किमी वृद्धि पाई। तो आम एक मार्किया प्रश्न आसते पे प्राय गत वर्ष एग्जाम परीक्षा आसी आमर पुनः वनीकरण जो 2017 मसीह जंगल अरण्यर आयतन केते वृद्धि पाई ना 3976 वर्ग किमी वृद्धि पाई। आम लिखि रख यहाँ नोट करनबा। तो आम आज आमर पाठ थिला आम अरण्य कौन जानिले आम जैवमंडल अरण्यर भूमिका केते आवश्यक जानिले आम अरण्य केते भाग विभक्त करना प्रशासनिक दृष्टि केते भाग संवैधानिक दृष्टि केते भाग और जलवायु को रक्षा करी आम अरण्य को केते भाग विभक्त कराई से सब विषय आम जानिले अरण्य संरक्षण कहीं आवश्यक ताहा जानिले वर्तमान आम जहाँ सब पढ़िले किसी प्रश्न माध्यम आम आलोचना करवा। तो प्रश्न उत्तर देवाई समस्त प्रस्तुत हो प्रत्येक प्रश्न प्रदत्त 4टी संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तर बाची शून्य स्थान पूरण करवा। तुम प्रथम प्रश्न है पिला ना बोरियल उद्भिद देश ठार आसी आफ्रिका चीन इंडोनेशिया मालेशिया चीन 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 वेरी गुड कौन आसी चीन रु आसी आमर जो रहा उष्मक्रांतीय रही आफ्रिका आम इंडोनेशिया मालेशिया रु आसी अच्छी ठीक वेरी गुड। नेक्स्ट भारत में संरक्षित अरण्यर आयतन समुदाय अरण्यर आयतन प्राय 10% अटे 53%, 53%, वेरी गुड 53% ऑप्शन ए 53%। हाँ वेरी गुड आमर भारत संरक्षित अरण्यर आयतन है आमर 53%। वेरी गुड। नेक्स्ट भारत राज्य अरण्य आयतन समुदाय अरण्य 10% अटे 93.8 93.8 वेरी गुड 93.8 वेरी गुड। नेक्स्ट लिखित राज्य मानक मध्य 10 राज्य सर्वनिम्न अरण्य रही अरुणाचल प्रदेश ओडिशा मेघालय हरियाणा सर्वनिम्न अरण्य कौन राज्य रही आमर
ऑप्शन ए अरुणाचल ऑप्शन ए प्रदेश अरुणाचल प्रदेश सर्वनिम्न अच्छी अरण्य नाई अरुणाचल प्रदेश रे हम सर्वाधिक अरण्य अच्छी सर्वाधिक अरण्य कोठे देखा जाए ना अरुणाचल प्रदेश कौन ऑप्शन डी वेरी गुड ऑप्शन डी हरियाणा हरियाणा रे हमर सर्वनिम्न अरण्य देखा जाए अरुणाचल प्रदेश रे हमर सर्वाधिक अरण्य देखा जाय छै और हरियाणा रे हमर सर्वनिम्न अरण्य देखा जाय छै पिला माने को मन रखिबो नेक्स्ट वार्षिक हारारी 250 सेमी रु अधिक पृष्ठपात पाउसबा स्थान गुडी करे डेस अरण्य देखा जाए मौसमी ज्वारिया क्रांतीय आर्द्रता उपक्रांतीय कार्बोनेट क्रांतीय ऑप्शन वेरी गुड आमर 250 सेमी रु अधिक पृष्ठपात पाउस अंचल रे क्रांतीय आर्द्र चिरहरित देखा देई थाए नेक्स्ट एक निर्दिष्ट समय रे डेस अरण्यर वृक्ष गुड़िक 6 सप्ताह रु 8 सप्ताह पर्यंत पत्र झड़ा दिए थांते जुआरिया पर्णमोची सी वेरी गुड आमर एक निर्दिष्ट समय रे माने वृक्ष गुड़िक 6 सप्ताह 8 सप्ताह पत्र झड़ा दिए थांते पर्णमोची अरण्य कहा जाए आको अन्य आ कोन नाम करा जाए ना याको हमें मौसमी अरण्य मध्य कहि थाउ नेक्स्ट गंगा नदीर मुहाण ठारू कावेरी नदीर मुहाण पर्यंत निम्नभूमि और त्रिकोणभूमि गुड़िक डेस अरण्य देखा जाए मौसमी क्रांतीय जुआरिया जुआरिया वेरी गुड जुआरिया अरण्य देखा देता नेक्स्ट डेस वृक्षर काठरे डंगा तैयारी हुए झाऊ रोजवुड ताल झाऊ वेरी गुड काजुरीना बा झाऊ गछर काठरे हमर डंगा तैयारी होई थाए नेक्स्ट डेस गछर रसरे चमड़ा कसा जाए ताल आकाशिया पलाश बाबुल तो फूल रे हमर अतर प्रस्तुत करा जाए ब्रह्मकुमल बा कुंथर फल फूल रसरे हमर अतर प्रस्तुत करा जाए किंतु चमड़ा को कसा जाए चमड़ा कसा जाए हमर पाइबो हमर चमड़ा जे सुंदरी वृक्षर फूलरू लुगारे रंग कसा जाए से चमड़ा कसिबा पई आसिया वेरी गुड आकाशिया गछर रसरे हमर चमड़ा कसा जाई थाए केते जिस मन रखि पिला माने हमर ब्रह्मकमल कुंथर फूलर रसरे अतर प्रस्तुत करा जाए तापरे हमर हला झाऊ बा काजुरीना गछर काठरे डंगा तैयारी होई थाए आकाशिया गछर रसरे चमड़ा कसा जाए ओ सुंदरी वृक्षर फूलर रंगरे हमर लुगापटा लुगारे रंग कसा जाए ये सब जिन हमें मन रखा प्राय 1 मार्किया प्रश्न हमर आसी थाए नेक्स्ट प्रश्न पुनः वनीकरण जगु 2017 मसीहा रे अरण्यर आयतन डेस शतांश वृद्धि पाइछि डेस वर्ग किबे वृद्धि पाइछि ऑप्शन ए 3974 वेरी गुड 3974 सरकार द्वारा जो कार्यक्रम आरंभ होइछि पुनः वनीकरण जगु 2017 मसीहा रे हमर अरण्यर आयतन प्राय 3976 वर्ग किमी वृद्धि पाइछि वेरी गुड तो पिला माने थिला आज हमर विषय वस्तु हम भल आशा करूँ भल बुझी पारिथिबो प्रश्न गुड़िक उत्तर बहुत भल देथिबो धन्यवाद एबे हम किछि गृह कार्य लिखि नबा आमे हमर गृह कार्य हला अरण्यर उपकारिता विषय हम लिखिबा हम निजे मनरु हम निजे आलोचना करिकि अरण्य हम कोन सब माने लाभ पाउ से गुड़ हम लिखिबा ताको 5 माने आउ हमर गुटे काम हमर दायित्व हिसाब रे हमें 5 टी गले खाए गछ लगेबा जो द्वारा कि हमर अरण्यर जो स्वास्थ्य वृद्धि घटुछि ता हमर वृद्धि पाइबो आयतन वृद्धि पाइबो जो द्वारा कि हमर जलवायु हमर परिवेश कोन सुस्थ हबो ओ सबुजमय हेबो धन्यवाद पिला माने आशा करूछि आज विषयटी को भला भाबरे बुझी पारिथिबो आ सरकार को जो रही माँ पाई गछटी ताको हम सफल करने चेष्टा करवा आ समस्ते मानवर गछ लगेबा आम परिवेश को सबुज समय करवा धन्यवाद पिला माने।